Prior learning, we are going to learn about what these two dynasties talk about. So let's go through this beautiful poem. In a land where kings once ruled, Krishna Deva Raya and Akbar each one school. Krishna Deva Raya in Vijayanagar seat loved culture and arts and made it a treat. Social ranks were quite a big deal, but he allowed merit, talent to reveal. Akbar, the Mughal king, was so wise, religious tolerance his great prize, made land revenue simple and fair, with Zabt, prosperity was in the air. So these two rulers had different ways of ruling and they differently, managed the state affairs, but then they made an improvement in the country. So how did Krishna Deva Raya different from Akbar in the approach of social structure? Krishna Deva Raya was actually the one who was into caste system. He made four caste system. But if we talk of Akbar, he was different. He was basically into religious tolerance. He was loving with all the religion because he thought that God is one, right? And what was the key economic change introduced by Akbar and how did it differ from Krishna Deva Raya? Krishna Deva Raya's rule and the kingdom was different, but Akbar, he made the land revenue very simple and fair, and that's why it created a lot of prosperity during his reign. Now let's understand this in detail. The medieval period witnessed the rise and fall of numerous powerful empires, each leaving a distinct mark on history. Two notable figures from this era, Krishnadevaraya and Akbar, that emerge as influential rulers of their respective empires. In this chapter, we'll explore and compare these two great empires, and we are going to study about Krishnadevaraya of Vijayanagar Empire and Akbar the Great of Mughal Empire. So by examining their contribution, policies and impacts on the society, we can gain valuable insights into the dynamics of medieval empires and the diverse way they shape the course of history. तो अब हम पढ़ते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर, जिसे सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ये एक सिटी भी था और एक एम्पायर भी था। इट वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी, राइट। जब इसका बहुत अच्छा टाइम था इन इट्स हेडे, इट स्ट्रेच फ्रॉम रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला. So in 1565, the city was sacked and subsequently deserted. Although it fell into ruins in the 17th and 18th century, it lived on its memory to people living in the Krishna Tungabhadra Doab. They remembered it as Hampi, a name derived from the local mother goddess Pampa Devi. Now, these oral traditions combined with the archaeological find, monuments and inscriptions, other records help scholars to rediscover Vijayanagar Empire. ना विजयनगर एम्पायर को डेवलप किसने किया, तो बनाया किसने था? दो भाई थे, हरिहरा और भूका। ये 1336 में बनाया गया था। ये लोग कौन थे? ये जागीरदार थे, दे वर फिड्यूटरीज ऑफ वरंगल। जब इस वरंगल को ओवररन किया घियासुद्दीन तुगलक ने, तो ये जो भाई है ये कंप्लीट एक जगह थी वहां शिफ्ट हो गए। बट ये जो घियासुद्दीन तुगलक था, इसने कंपनी को भी कॉन्कर कर लिया और इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया। फिर इनको जो है उन्होंने साउथ इंडिया भेज दिया टू क्रश द रिबेलियंस देयर। बट कुछ समय बाद इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट एक रिबेलियन किया and they declared their independence and then they built Vijayanagar, that is city of victory, and made it their capital. Now let's just imagine these two brothers were really very powerful. Instead of meeting a lot of challenges, they actually had a triumph over all these problems. Now हरिहरा, जो अगर हैम्पी की बात करें, हैम्पी कर्नाटका में वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओनली द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया इज अहेड ऑफ इट। अब हरिहरा जो था उसने थ्रोन को असेंड किया 1336 में, 20 साल के लिए रूल किया। फिर बुक्का आया, वो उसने रूल किया उसे 1377 तक। ये जो दो भाई थे इन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने दे फॉट अगेंस्ट द होसियाला रूलर ऑफ मैसूर एंड दे आल्सो दे फॉट अगेंस्ट द किंग ऑफ मदुराई, राइट। अब इन्होंने क्या किया, इन बुक्का ने किंग ऑफ मदुराई को हराया एंड एनेक्स हिज टेरिटरी। ग्रेजुअली इन्होंने पूरा साउथ इंडिया अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इनके टाइम में विजयनगर जो था वो 230 साल तक चला था विजयनगर का किंगडम, और इस किंग्स को रायर्स भी कहते थे। और तीन डायनेस्टीज ने इन्हें रूल किया, एक संगम डायनेस्टी, एक सलुवा डायनेस्टी, एक तुलुवा डायनेस्टी, राइट ना। ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे यहाँ पे आते थे और इनको दे वर स्टार्टल्ड टू सी हाउ it is being run. So many travelers such as Niccolo Conti, Abdur Razak and Domingo Pace, they visited the kingdom of Vijayanagar and they described the capital city of Hampi and the life of people in those times. Now इनका उस समय का जो मेजर रूलर था वो था कृष्णदेवर राया, जो उस समय का ग्रेटेस्ट रूलर था।
कृष्णदेवराय ने बेसिकली डिफीट किया था बहामनी सुल्तान को और उड़ीसा के एक राजा को। फिर उसने एक जगह को अनेक्स किया, उस जगह का नाम था रायचूर दुआब। ये जो एरिया था बहुत फर्टाइल एरिया था बिटवीन कृष्ण रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। अंडर हिम द एम्पायर कवर्ड द होल ऑफ साउथ इंडियन। फाइनली इसने अपना राज्य साउथ इंडियन में पूरा बढ़ा लिया। जो ये जो राजा था, ही इनकार्ड, ही इज वेरी गुड, ही वाज वेरी प्रॉस्परस, ही एक्चुअली इनकार्ड अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन हिज किंगडम। हाउ? उसने ट्रेड और कॉमर्स को बहुत बढ़ाया। उसने क्या किया? ट्रेडिंग लिंक्स बनाए, किसके साथ? पोर्चुगीज के साथ, इंग्लिश के साथ और डच के साथ। उसने फिर ग्रेट अटेंशन दिया एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर के अलावा उसने बहुत सारे काम किए। उसने टैंक्स भी बनवाए, डैम्स भी बनवाए और कैनाल्स बनाए इरिगेशन के। उसके कोर्ट में 8 पोएट होते थे, राइट? वो 8 पोएट को कलेक्टिवली वो अष्टादिग्गज कहता था। अष्टादिग्गज, अष्टा मतलब 8, अष्टादिग्गज जिसका मतलब होता है 8 एलिफेंट्स। उनमें कौन कौन थे? अलसानी, पेदाना, नंदी, तिमाना, मध्यागरी, मलाना, दुर्जाति, अयलराजू, रामाभद्रु, पिंगाली सुराना, रामा राजा, भूषंदु एंड तेनाली रामा। ये सारे उसके अष्टदिग्गज जो थे, जो 8 पोएट होते। तो इसका मतलब क्या है? कृष्णदेवा जो था वो उसने सबसे पहले तो बहामनी सुल्तान को और किंग ऑफ उड़ीसा को जो है उसने उनको हरा के रायचूर देवप को एनेक्स किया। उसके बाद उसका पास पूरा साउथ इंडिया आया। साउथ इंडिया आने के बाद उसने बहुत सारा ट्रेड एंड कॉमर्स किया, लिंक्स बनाए इंग्लिश, डच और पोर्चुगीज के साथ, बहुत काम किया एग्रीकल्चर में, टैंक्स बनाए, इरिगेशन पे बहुत काम किया और उसने आर्ट को बहुत ज्यादा पैटर्नाइज किया। हम्पी जो था, इसके जो रूइंस थे ये 1800 में लाइट में आए। एक इंजीनियर और एक एंटीक्वेरियन था, उसका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ये जो था ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉयर था। इसने एक सर्वे किया, फर्स्ट सर्वे मैप बनाया साइट का, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके बारे में मिली। Much of the initial information he received was based on the memories of priest of Virupaksha temple and shrine of Pampadevi. Subsequently, from 1856, photographers began to record the monuments, which enabled scholars to study them. As early as 1836, epigraphists began collecting several dozen inscriptions found at this and other temples at Pampi. In an effort to reconstruct the history of the city and the empire, historians collated information from these sources with the accounts of foreign travelers and other literature written in Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit. हम्पी जो था वो कहाँ सिचुएटेड था? हम्पी जो एक जगह थी वो बैंक और रिवर तुंगभद्रा सिचुएटेड था कर्नाटका में। ये कैपिटल था विजयनगर एम्पायर का। इसको कैपिटल चूज क्यों किया था? बिकॉज ये जो था जिस रिवर पर सिचुएटेड था वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी और उसके साथ में यहाँ पे बहुत सारे, इट वॉज सराउंड बाई क्लिफ्स ऑन अदर साइड। तो एक पर्शियन ट्रैवलर आया, अब अब्दुल रज़ाक, उसने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। हम्पी जो था एक इंपॉर्टेंट सेंटर भी था कॉटन और स्पाइस ट्रेड के लिए। 15th और 16th सेंचुरी में यूरोपियन मर्चेंट्स जो है वहां जाते थे और क्या लेके, इन सब में स्पाइस और कॉटन लेके आते थे। हम्पी ऑल्सो ट्रेडेड विद पर्शिया, अरेबिया, बर्मा, चाइना एंड न्यूमरस आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। ट्रेडर्स फ्रॉम फारअवे लैंड्स विजिटेड हम्पी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बाय एंड सेल गुड्स। हम्पी इसके अलावा मतलब ट्रेड के लिए तो बहुत फेमस ही था। ट्रेड के अलावा एक वेल फोर्टिफाइड सिटी थी। जो वेल फोर्टिफाइड होगी वहां पे अटैक कम होगा, राइट? उसके अलावा यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल्स भी थे। जो रूलर्स थे ना, दे यूज द मनी फ्रॉम ट्रेड टू बिल्ड टेम्पल। जो पैसा इनको बहुत सारा इकट्ठा होता था वो टेम्पल्स बनाने में लगाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ प्लेटफॉर्म पॉपुलरली कॉल्ड एज महानामी डिब्बा। यहाँ पर जो किंग और उसके फैमिली होते थे, यहाँ से दे यूज्ड टू वॉच डांस एंड म्यूजिकल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द महानामी फेस्टिवल, right? Can we see this Manavi Dibba? After the battle of Talikota, हम्पी फेल इनटू डिक्लाइन। तो हम्पी का डिक्लाइन कब आया? जब बैटल हुई तलीकोटा की तो ये डिक्लाइन आ गया। ट्रेड कंटिन्यूड बट द टाउन लॉस इट्स इंपॉर्टेंस। नाउ लेट्स स्टडी द स्टेट पॉलिटिक्स। एडमिनिस्ट्रेशन, तो कृष्णदेवराय के टाइम एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? सबसे बड़ी अथॉरिटी होती थी राजा, किंग। उसको उसको हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एम्पायर को उन्होंने डिवाइड किया था मंडलम्स में, प्रोविंसेस में। हर एक मंडलम को हेड करता था गवर्नर। फिर नाडूस विच इज डिस्ट्रिक्ट एंड स्थल विच इज सब डिस्ट्रिक्ट एंड ग्रामस विच इज विलेजेस। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक होती थी चोला एडमिनिस्ट्रेशन की। डिकेड ड्यूरिंग दिस पीरियड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम फ्यूडल नेचर। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आल्सो बिकेम हेरिडिटरी, सो इंक्रीजिंगली द किंग बिकेम डिपेंडेंट ऑन फ्यूडल लॉज। तो यहाँ पे कैसा राजा था? एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? जो राजा था वो फ्यूडल लॉज पर डिपेंडेंट था। राजा ना, जो किंग कृष्णदेवराय जो था ये बहुत जस्टिस में बिलीव करता था। तो ये जो था इसका फोकस था जस्टिस पर और वेलफेयर, उसके सब्जेक्ट का वेलफेयर हो। एंड यूज्ड टू प्रमोट फेयर एंड गुड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन रिगार्डिंग ऑफ द सोशल स्टैंडिंग। चाहे वो गरीब है अमीर है, उनका जो ट्रीटमेंट था उसमें भेदभाव नहीं था।
The king implemented policies that aimed to uplift the marginalized sections of society. Welfare measures were introduced to ensure the well-being of the people, especially during times of drought or famine. तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट था इसके टाइम पे. ये बहुत बहुत सगाशियस, बहुत वाइज रूलर था, बिकॉज ये बिलीव करता था लोगों के वेलफेयर में, और स्पेशली कभी भी कोई क्राइसिस सिचुएशन आती थी तो उसमें ये बहुत कंट्रीब्यूट करता था, बहुत हेल्प करता था लोगों को उस चीज से बाहर आने में, बिकॉज उस टाइम फैमिन्स वगैरह बड़े कॉमन होते थे. नाउ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. विजयनगर एम्पायर जो है एक सिस्टमैटिक रेवेन्यू कलेक्शन पे डिपेंड था, टैक्सेशन सिस्टम था. लैंड रेवेन्यू एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम होता था, और टैक्स कलेक्ट किया जाता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से. ये जो एम्पायर था इसने ट्रेड और इनकरेज किया और टैक्सेस लगाए गुड्स पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे इम्पोर्ट से. तो रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता था ये एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता था, और आर्ट और कल्चर को पैटर्नेज भी करते थे, और इससे लोग मंदिर भी बनाते थे बहुत सारे, राइट. देन इज इनका सोशल स्ट्रक्चर क्या था. कृष्णा देव राय ना ने एक कास्ट सिस्टम बनाया उस टाइम अपने सोसाइटी को शेप करने के लिए. उसने 4 कास्ट बना दिए. उसने एक बनाई ब्राह्मण कास्ट जिसमें प्रीस्टर स्कॉलर आते थे, क्षत्रिय जिसमें वॉरियर्स एंड रूलर्स आते थे, इसमें वैश्यस मर्चेंट एंड ट्रेडर आते थे, शूद्र जिसमें आर्टिशियन लेबर और सर्विस प्रोवाइडर आते थे. हर एक इंसान का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉटेड थी. अब ये जो ब्राह्मण्स होते थे इनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता था स्पिरिचुअल गाइड और एडवाइजर्स को, रूरल को. ये लोग इनको एडवाइस करते थे. क्षत्रियस जो थे वो रूलिंग क्लास थे, वॉरियर्स थे और प्रोटेक्टर्स थे किंगडम के. जो वैश्यास थे दे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड हेल्प इन द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्पायर. जो शूद्रस थे लोअर थे सोशल हायरार्की में, और सारी सर्विसेज और काम जो क्राफ्ट्स के काम होते हैं वो ये लोग परफॉर्म करते थे. नाउ इफ वी टॉक ऑफ द आर्ट्स लिटरेचर, इसके टाइम में आर्ट लिटरेचर बड़ा फ्लरिश किया. आर्ट लिटरेचर कैसे फ्लरिश किया, बिकॉज ये एक सेंटर था आर्ट लिटरेचर आर्किटेक्चर का. जो रूलर्स थे द ग्रोथ ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु लिटरेचर, इस समय पे किस लैंग्वेज का ग्रोथ हुआ, संस्कृत लिटरेचर का और तेलुगु लिटरेचर का. एंड दे वर एमिनेंट एज, जैसे मैंने कहा इसके पास आर्ट है ना, पोएट्स थे, तो यहाँ पे बहुत सारे पोएट्स और राइटर भी थे. टेम्पल्स, पैलेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड विद इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चरल डिजाइंस शोकेसिंग द एम्पायर्स ग्रैंडियर एंड कल्चरल इवेंट. तो अगर हम कल्चरल अचीवमेंट की बात करें तो उस समय पे आर्ट को बहुत पैटर्नाइज किया जा रहा था. बहुत सारे ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर थे जो इसके ना बताते हैं कि उस समय कितना ग्रैंडियर था, राइट. Now nature of land holding. Discussion of the system of land grants and grants to temple during Krishnadeva reign. During Krishnadeva's rule, land grants were a crucial aspect to empire's administration. The king awarded land grants. क्या अवार्ड करता था, लैंड ग्रांट. किसको देता था, अपने ट्रस्टेड ऑफिशियल को या मिलिट्री कमांडर्स या स्कॉलर्स को एज अ फॉर्म ऑफ रिकग्निशन. तो रिवॉर्ड रिकग्निशन जो है लैंड ग्रांट्स के फॉर्म में होता था, जो भी वो अच्छा काम करते थे. ये जो ग्रांट्स होते थे ये टैक्स फ्री होते थे, और काइंड ऑफ जिसको भी मिलता था उसको एक सोर्स ऑफ इनकम होता था. जो टेम्पल्स होते थे उनको बहुत जेनरस लैंड ग्रांट्स मिलते थे रूरल से, एनहांसिंग देयर वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी. टेम्पल्स पर बहुत काम किया जाता था, ये सारा टैक्स फ्री चीज होती थी. एनालिसिस ऑफ द रोल ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इन लैंड होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन. फ्यूडल लॉर्ड्स जो है ये डिपेंड, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि ये लोग किस पे डिपेंड थे, फ्यूडल लॉर्ड्स पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे विजयनगर एम्पायर में. और इसमें ये क्या था, दीज पावरफुल लोकल चीफ्स were granted control over the specific territories and were responsible for collecting taxes and maintaining law and order in their regions. They were expected to render military support to the king during times of war and were given autonomy in governing their domains. अपना डोमेन को अपने मैनेज करने में ये लोग सेल्फ सफिशिएंट थे. एज पर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न, बहुत सारा ऐसा काम हुआ था जिससे उस जगह का एम्पायर में बहुत ग्रोथ हुई थी, बिकॉज यहाँ पर एग्रीकल्चर जो था वो इसका बैकबोन था. इसके अलावा यहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड थे, जैसे मैंने आपको कहा तुंगभद्रा रिवर था और बहुत सारे क्लिप्स थे. तो यहाँ पे किस चीज को, कौन से क्रॉप्स बोए जाते थे, राइस, मिलेट, पल्सेस एंड शुगर केन. इससे फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहती थी, राइट. तो वहाँ पे फूड क्राइसिस नहीं था, कोई स्कैर्सिटी नहीं था. उसके अलावा जो एम्पायर था ना इसमें एक्सटेंसिव ट्रेड हो रहा था, इनलैंड भी और मैरीटाइम भी, बिकॉज ये पोर्ट्स के साथ बना हुआ था. तो ट्रेड रूट्स जो थे उसने कनेक्ट किया एम्पायर को बहुत सारे रीजन के साथ, जिसकी वजह से एक्सचेंज हो रहा था गुड्स लाइक स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रेशियस जेम्स एंड आइवरी. एडिशनली एम्पायर के पास थ्राइविंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी थी जो फाइन टेक्सटाइल्स, मेटलवर्क और पॉटरी प्रोड्यूस करती थी, जिससे जो कंट्री उस वाली एम्पायर की इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा था. उसके अलावा अगर हम बात करें पोर्ट्स एंड ट्रेड सेंटर के, ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था जहाँ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के पास, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत फ्लरिश हुआ किन कंट्रीज के साथ, पर्शिया, अरेबिया, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया.
हम्पी जो इसकी कैपिटल थी, ये एक प्रोमिनेंट ट्रेड सेंटर था जिसमें मर्चेंट्स आते थे दूर 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 से और ट्रेड करते थे। इनके जो प्रॉस्परस पोर्ट्स थे वो गोवा, मैंगलोर एंड कोझिकोड ये थे। ये मैरीटाइम ट्रेड को फॉरवर्ड करते थे और एक एम्पायर की इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करते थे फ्लरिश करने में। Now this was all about this. Now how did this empire come to an end? Within the polity, claimants to power, including members of the ruling lineage as well as military commanders, the first dynasty known as Sangam dynasty exercised control till 1480 में। पहले तो हमने कहा ना इसमें 3 डायनेस्टी आई थी, संगम, सलूबा एंड तुलुवा। तो संगम डायनेस्टी जो थी वो 1485 तक आई थी। इसको फिर सलूबास आए, ठीक है, जो कि मिलिट्री कमांडर्स थे और वो 1505 तक उन्होंने राज्य किया। उसके बाद आए तुलुवास जो है फाइनली कृष्णा देवा राया जो है तुलुवा डायनेस्टी का मेंबर था। अब कृष्णा देवा राया जो है रूल वॉज कैरेक्टर, इसका मेन काम क्या था, इसकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे प्लस पॉइंट क्या था, यहाँ पर एक्सपेंशन पर काम हो रहा था और कंसोलिडेशन पर काम हो रहा था। ये जो था this was a time when the land between Tungabhadra and Krishna river, which is Raichur river, was acquired. The rulers of Orissa were subdued and severe defeats were inflicted on the Sultan of Bijapur. Although the kingdom remained in a constant state of military preparedness, it flourished under the condition of unparalleled peace and prosperity. अब यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या था, इस जो कृष्णा देवर आया था ये किस में बिलीव करता था, एक्सपेंशन में, कंसोलिडेशन में। आर्मी वाइज बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, अगर कोई से अटैक करेगा इसको पता था कि मेरे को कैसे मैनेज करना है। बट पैरेलली उसकी जो एम्पायर की जो पीस और प्रॉस्पेरिटी वो इक्वली एस्टैब्लिश थी। ये जो है ये बहुत फेमस है कि फाइन टेम्पल्स बनाए इसने और गोपुरम्स बनाए, जिसकी वजह से बहुत सारे साउथ इंडियन टेम्पल्स बहुत फेमस हैं। He also founded a suburban township near Vijayanagar called Nagalapuram after his mother. Some of the most detailed description of Vijayanagar come from the time or just after. The strain began to show within the imperial structure following Krishnadeva Raya's death in 1529. जब तक ये जिंदा था सब कुछ अच्छा था, बट इसे इसकी डेथ हुई तो इसके जो सक्सेसर्स थे they were troubled by rebellious Nayakas or military chiefs. By 1542 the control at the center had shifted to another ruling lineage, that of Aravidu, which remained in power till the end of 17th century. During this period, as indeed earlier, the military ambitions of these rulers of Vijayanagar as well as those of Deccan Sultanates result in shifting alignments. Eventually, this led to alliance of the Sultanates against Vijayanagara. In 1565, Ram Raya, the chief minister of Vijayanagara, led the army into the battle of Rakshaki Thangari, and then it is where his forces were routed to by the combined armies of Bijapur, Ahmednagar and Golconda. ये जो victorious army थी, they sacked the city of Vijayanagar. City was totally abandoned within a few years. Now the focus of the empire shifted to the east, where the Aravidu dynasty ruled the Penukonda and later from Chandragiri. Although the armies of sultans were responsible for the destruction of the city, Vijayanagara relations between the sultans and rayas were not hostile in spite of religious differences. Krishnadeva Raya, for example, supported some claimants to power of sultanates and took pride in the title establisher of Yavan Kingdom. Similarly, the Sultan of Bijapur intervened to resolve succession disputes in Vijayanagar following the death of Krishnadeva Raya. In fact, the Vijayanagar king first seen to ensure the stability of sultanate and vice versa. It was adventurous policy of Rama Raya who tried to play off one sultan against another that led the sultans to combine together and decisively defeat him. तो फाइनली इसका जो सल्तनत था अब खत्म हो गया। अब हम आते हैं मुगल एम्पायर में, जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई थी उस टाइम पर। अब लेट्स स्टडी अबाउट मुगल एम्पायर। मुगल्स जो थे वो 2 लीनिएजेस से आए थे। मम्मी की साइड से, मैटरनल साइड से वो आए थे डिसेंडेंट्स ऑफ जंगीज खान, राइट, और मंगोल एट द मंगोल रिवर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। अपने पापा की तरफ से वो आए थे, दे वर सक्सेसर ऑफ तैमूर, जो कि रूलर था ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। अब जो मुगल्स थे ना, उनके अपने आप को मुगल या मुगल कहलाना अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज जंगीज खान मेमोरी जो थी वो एसोसिएटेड थी लोगों के बहुत इन्यूमरेबल लोगों के मैसेकर के साथ। So it also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. So on the other hand, Mughals were proud of their Timurid ancestry, not at least because of their great ancestor had captured Delhi in 1398. They celebrated their genealogy pictorically, each ruler getting a picture made of Timur and himself. तो ये इस चीज को बहुत enjoy करते थे। अब जो मुगल्स थे ना, इन्होंने ऑल इंडिया एम्पायर बनाया और इसको बहुत समय तक ना अच्छे से 2 सेंचुरी तक चलाया। फर्दर अगर हम देखें द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट दे क्रिएटेड आउटलिस्टेड देयर रूल। जो पहले 6 मुगल एम्परर्स थे वो थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इस वाले चैप्टर में हम बाबर और अकबर के बारे में पढ़ेंगे। जो बाबर था वो फर्स्ट मुगल एम्परर था
और उसी रूल्ड फरगाना इन सेंट्रल एशिया एट अ टाइम व्हेन लोधी किंग्स वर रूलिंग ओवर द दिल्ली सल्तनत। जो लोकल रूलर्स थे उसने बाबर को बुलाया, इंडिया आ जाओ और लोधीज को आप चैलेंज करो। Babur had heard of a lot about fabled wealth of Hinduism and thought that बाबर को पता था हिंदुस्तान में बहुत पैसा, तो यहाँ लूटपाट में जाऊंगा और यहाँ पे स्टैब्लिश कर लूंगा अपना किंगडम। एंड ही थॉट दैट इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड हिज किंगडम। तो 1526 में बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी से मिला। कहाँ मिला था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। वहां पे उसने एक बैटल हुई उसकी, और उसके बाद उसके पास तो बहुत एफिशिएंट आर्टिलरी थी। जो लोधी आर्मी थी वो बड़ी थी बाबर से, बट फिर भी बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराया और कॉन्कर करा दिल्ली और आगरा। राइट, सो दिस वाज द बाबर टाइम। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट अकबर इन डिटेल। अकबर जो था सबसे बड़ा रूलर था मुगल डायनेस्टी का, और बहुत अच्छा ग्रेटेस्ट रूलर भी कहलाया जाता है। उसके समय पे बहुत सारा ना चेंज आया उसके एम्पायर में। ही ब्रॉट ग्लोरी टू द एम्पायर एंड इज कॉल्ड अकबर द ग्रेट, इस करके उसको अकबर द ग्रेट भी बोला जाता है। अब बात करते हैं इसकी एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन थ्योरी को। He became the king in 1556 when he was just 13 years old. Imagine, आप लोग भी सब इतने साल के हैं, ये कब राजा बनता जब से सिर्फ 13 साल का था। बैराम खान जो था उसने was appointed as अकबर सुबेदार। Now soon after coming to power, अकबर defeated हेमू। अकबर ने हेमू को डिफीट किया, जो कि जनरल था अफगान फोर्सेस का, इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। कुछ साल बाद he ended the regency of बैराम खान and took over the government. Then he conquered Gwalior, Ajmer and Jaunpur, and in 1561 he also annexed Malwa. अकबर ऑफर्ड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू द राजपूत। अकबर को पता था राजपूत जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, उनने उनसे अच्छे से बना के रखी। ही प्रॉमिस टू लेट देम रूल पीसफुली इफ दे एक्नॉलेज मुगल अथॉरिटी। उसने कहा अगर तुम अच्छे से रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे संबंध बना के रखूंगा। हाउएवर ही फॉट अगेंस्ट दोस राजपूत रूलर्स हु अपोज्ड हिम, पर जिन्होंने उसे अपोज किया उसके अगेंस्ट उसने फाइट भी किया, उसको अपोज भी किया। 1568 में ही कॉन्कर्ड चित्तौड़ एंड रणथंभौर। ही डिफीटेड राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ इन बैटल ऑफ हल्दीघाट इन 1576। अकबर बिल्ट अ वास्ट एम्पायर, इसने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। इसने गुजरात को कॉन्कर किया, वेस्ट में बंगाल को किया, उड़ीसा को किया, और उसने बहुत सारा सेंट्रल इंडिया को भी कॉन्कर किया। नॉर्थ वेस्ट में इसने कश्मीर, सिंध, काबुल और कंधार को ऐड किया। डेक्कन में इसने बेरार, खानदेश और पार्ट्स ऑफ अहमदनगर अपने कंट्रोल में लाया। अकबर को ना हंटिंग बहुत पसंद थी। वो क्या करता था, एक स्पेशल हंटिंग ड्रेस होती थी ग्रीन कलर में, येलो स्पॉट्स होते थे कि वो ना कैमोफ्लेज हो जाए और जानवर से पहचान ना पाए, उसे एक बुश की तरह ही समझे। सो ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग। नाउ इट्स हिज स्टेट पॉलिसीज। अकबर का एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो इसने बनाया। ही एक्चुअली इंट्रोड्यूस अ स्पेशल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो उसके मुगल एम्पायर को गवर्न करता था। उसने सारे अपने प्रोविंसेस को ना सूबास में डिवाइड कर दिया। हर एक सूबा को सूबादार जो है या गवर्नर जो है वो उसे हेड करता था। और अकबर क्या करता था, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल ओवर दीज प्रोविंसेस टू मेंटेन द यूनिटी एंड स्टेबिलिटी। और उसका जो उसको सब ऊपर से कंट्रोल करना अकबर का काम था। बट अगर हम देखें उसने सारे प्रोविंस को सूबास में डिवाइड कर दिया, सूबास को हेड करते थे सूबादार या फिर गवर्नर। फिर अकबर ने क्या किया, राजपूत को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ मुगल्स, ही ट्राइड टू गेन देयर लॉयल्टी इन मेनी वेज। और राजपूत के साथ इसने बहुत अच्छे अपने डीलिंग रखी। ही डिफीटेड द राजपूत्स बट डिड नॉट ह्यूमिलेट देम। इसने कई जगह पे जो ऑप्रेसिव रूलर्स थे उनको डिफीट भी किया, पर उनको ह्यूमिलेट नहीं करता था, टॉर्चर नहीं करता था, टायरनिकल राजा नहीं था ये। ही ट्रीटेड देम वेरी ऑनरेबली, उनको बहुत ऑनर के साथ ट्रीट करता था। ही अलाउड मोस्ट राजपूत रेंज टू कंटिन्यू रूलिंग ओवर द टेरिटरीज एंड डिड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स। उनके इंटरनल मैटर में बिल्कुल नहीं घुसता था। अकबर गेव हाई पोस्ट टू राजपूत चीफ इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। राजा मान सिंह जो थे उस समय पर, तो उनको राजा बीरबल जो था वो बहुत ट्रस्टेड ऑफिशियल थे और वो राजपूत से। फिर उसका आया मनसबदारी सिस्टम एंड इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब इसने जो था इसने एक सिस्टम बनाई, यूनिक मिलिट्री कम सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया, उसको मनसबदारी सिस्टम बोलते थे। ये जो था ऑफिशियल और मनसबदार जो थे उनको मनसब जो थे उनको प्रॉपर रैंक्स मिली हुई थी मिलिट्री कैपेबिलिटीज में, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल में। जितनी बड़ी रैंक होती थी उतनी ज्यादा उसको सोल्जर्स मिलते थे। ये सिस्टम इंश्योर्ड लॉयल्टी एंड एम्परर टू द स्ट्रीमलाइन गवर्नेंस। ये उसका एक तरीका था, एक सिविलियन एंड ना ये एक सिविलियन तरीका था या मिलिट्री कम सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। फिर इसकी जो पॉलिसी थी अकबर के टाइम पे बहुत ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस था। अकबर ने कभी फोर्सफुली किसी को नहीं किया कहा कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ।
अकबर जो था सब अगर हम देखें अकबर बहुत पैट्रोनेज करता था सारे रिलीजन को, बिकॉज उसका मानना था कि भगवान एक है. लेट्स स्टडी अबाउट हिज religious tolerance. Akbar's policy of religious tolerance was a remarkable feature to his rule. He embraced a liberal approach towards various religions and sought to create a harmonious and inclusive society. तो उसका एक तरीका था, वो बहुत लिबरल था, वो सब रिलीजन्स की बहुत इज्जत करता था और एक हारमोनियस सोसाइटी बना के रखी हुई थी. He initiated discussion between scholars of different faith. और वो जो दूसरे दूसरे फेथ, एक सपोज हर एक फेथ के रिलीजन को इनकरेज करता था कि वो अपने रिलीजन के बारे में बताएं. उसकी जो रिलीजियस टॉलरेंस थी उसकी वजह से वहां पर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत थी और सोशल हार्मनी थी उसके राज्य में. द Mughal Empire exhibited a diverse social structure comprising various community, religions, and ethnic groups. Akbar's policy of religious tolerance and inclusion led to a multicultural society where people from different backgrounds coexist. तो अकबर जो है उस समय, अगर हम अकबरनामा पढ़ें तो अकबर की पॉलिसीज और रेंज के बारे में वो बताता है. अकबर जो था बहुत ज्यादा रिलीजियसली टॉलरेंट इंसान था. ही रियलाइज अर्ली दैट टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर ही हैड टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज हिंदू सब्जेक्ट. उसे लगा कि मैं राज्य पर कभी भी इतना अच्छा रूल नहीं कर सकता जब तक मेरे पास हिंदू सोसाइटी का भी इक्वल लव ना हो. उसने मेजॉरिटी उनको सबको ही ना, ही यूज्ड टू एक्चुअली वाज नॉट प्रिटेंडेड बट ही हैड टॉलरेंस फॉर एवरीवन बिकॉज ऑफ व्हिच देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्मोनियस एनवायरनमेंट ओवर देयर. उसने अपने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल ट्रीट किया. रिलीजन को इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ दिया कि किस आपको कौन सा रिलीजन है. कोई फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं किया. People had the freedom to worship as they liked. Akbar adopted numerous measures to show his secular spirit. उसने और बहुत काम किया. उसने बहुत बड़े बड़े काम किए. उसने बेसिकली एक पिलग्रिम टैक्स होता था 1562 में और जजिया होता था 1560 में, जिसके लिए लोग बहुत अपोज करते थे, उसको हटा दिया, अबॉलिश कर दिया. फिर उसके बाद उसने एक एक प्रैक्टिस जो थी कि आप जबरदस्ती प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे, वो भी उसने हटा दिया. ठीक है. फिर उसने क्या किया, ही अलाउड एंड समटाइम्स इवन इनकरेज्ड द हिंदूज टू बिल्ड टेंपल्स. ही आल्सो गेव ग्रांट्स टू मेनी टेंपल्स. उसने सिर्फ वो हेल्प करता था, अगर हिंदूज को ग्रांट चाहिए होती ना टेंपल बनाने के लिए तो उनको ग्रांट्स भी दे देता था. ही पार्टिसिपेटेड इन हिंदू फेस्टिवल्स सच एज होली, दिवाली एंड रक्षाबंधन. ही गॉट द होली बुक्स ऑफ हिंदूज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन. तो उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसमें वो उसने सिर्फ अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, दूसरे धर्म को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी ना. इबादत खाना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो अब हम पढ़ेंगे. इबादत खाना जो कि हॉल ऑफ वर्शिप कहलाता था, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे डिबेट्स और डिस्कशंस होते थे रिलीजियस टीचर्स और स्कॉलर्स के. राइट. सो ताहुद इलाही और दीन इलाही, आफ्टर इंटरेक्टिंग विद पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स फॉर मेनी, बहुत सारे रिलीजन से इंटरेक्ट करके अकबर ने कंक्लूड किया कि जो सारे रिलीजन हैं वो एक ही मैसेज देते हैं, love, respect and peace का. He felt that if the common ideals of all religion could be combined to form a new creed, the people of this empire would benefit from her. तो उसने कोई नया रिलीजन नहीं बनाया, पर उसने एक बात बताई. उसने सजेस्ट किया एक रिलीजियस बात जिसे दीन इलाही भी कहा जाता था या डिवाइन मोनोथिज्म. ये इसका मतलब था एक भगवान है, एक भगवान एक है, आप किसी भी तरीके से उसे पूजा करो. He also declared himself as a spiritual guide of his subject. उसने अपने आप को डिक्लेयर किया एक स्पिरिचुअल गाइड. दीन इलाही एक रिलीजन नहीं था, एक तरीका था इस ऐसा मानने के लिए कि भगवान एक है. This is what Abul Fazl wrote about Deen in the Ane Akbari. Those who wanted to join this order and those whom the emperor approved were admitted on a Sunday. The members of this order greeted each other with Allah Akbar, God is great. Each member hosted a dinner on his birthday and gave up eating meat, especially in the month of birth. तो क्या होता था इस मीटिंग में, संडे को होती थी मीटिंग. अब आपका पहला तरीका क्या था, तो अल्लाह अकबर कह के एक विश होता था जिससे आप ग्रीट करते थे एक दूसरे को. उसके बाद जो मेंबर्स होते थे ना, वो अपने बर्थडे पे एक डिनर जो है होस्ट करते थे और उस महीने में, उस पूरे महीने में वो मीट नहीं खाते थे. देवर नो प्रीस्ट, नो प्लेस ऑफ वर्शिप एंड नो. तो इसने क्या किया, सारे प्रीस्ट को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप और रिचुअल्स को खत्म कर दिया. Aine Akbari is a part of Akbarnama. It is a chronicle of Akbar Court, originally written in Persian. It is the administrative manual and a historical account documenting the emperor's reign. Sheikh Elahibadi Faiz Sirhindi Akbarnama is yet another important source of this region. However, Sirhindi has borrowed much of its content from Abul Fazl's Akbarnama. Deen Ilahi was a very simple path. It encouraged belief in one God. The practice of worshipping the sun, fire and other sources of light was an important element. Through it, Akbar was discouraged. Though it, Akbar also discouraged the killing of animals. अगर हम देखें दीन इलाही में उसने क्या किया था, खुद तो उसने उसको रियलाइज हुआ कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए
और सती सिस्टम को खत्म कर दिया। सुए कुल जो कि यूनिवर्सल पीस और पीस विद ऑल वाज अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। Akbar's Deen-e-Ilahi was aimed at achieving peace, tolerance, and unity in the country of diverse religion. Some historians say that Deen-e-Ilahi was a very similar to Ashoka's policy of Dhamma. हमने अशोका पॉलिसी पढ़ा था जब अशोका ने कलिंगा वॉर जब करी थी, तो उसके अंदर एक रिमोर्स आया था, उसने धर्मा धम्मा स्टार्ट किया था। ऐसे ये भी उसी के इक्विवेलेंट ही था। जो दीन इलाही था ना, वो कोई रिलीजन नहीं था, वो बेसिकली उसमें ना तो कोई रिचुअल थे, ना कोई सेक्रेट बुक्स थी, ना कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ना प्रीस्ट थे। ये बस एक कोड था मॉरल कंडक्ट का। बहुत कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। राजा बीरबल वाज वन ऑफ देम हु डिड, अदर्स सच एज राजा राम मान सिंह ओपनली डिसअप्रूव्ड ऑफ इट। अकबर नेवर फोर्स्ड एनीवन टू फॉलो इट। वो अकबर ने किसी को प्रेशराइज नहीं किया। दीन इलाही फेड हुआ जब अकबर की डेथ हो गई, बट ये जो सेक्युलर आइडियाज है उसके ना वर दे वर फॉलोड बाय हिज सन्स आल्सो। ना नेचर ऑफ लैंड होल्डिंग, उस समय इसने कैसे ना अपने राज्य को एडमिनिस्ट्रेट किया। अकबर ने इम्प्लीमेंट किया एक सेंट्रलाइज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसको वो तोदरमल बंदोबस्त कहता था। ठीक है, अब ये जो था सिस्टम, इसमें एम्पायर के लैंड को मेजर किया जाता था और एक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट होती थी लैंड की प्रोडक्टिविटी के। उसके बाद एक फिक्स परसेंटेज जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का था, जैसे जनरली 1/3 जो टोटल यील्ड होता था, उसको एज लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ये जो सिस्टम था बहुत फेयर और एफिशिएंट रेवेन्यू सिलेक्शन प्रोसेस था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्या था उसका रेवेन्यू सिस्टम, पैसा कहाँ से आता था, उसका एक सिस्टम था तोदरमल बंदोबस्त। अंडर दिस सिस्टम द एम्पायर लैंड वाज मेजर्ड and a standardized assessment was done of its productivity, and a total of 1/3 of the total yield was collected as land revenue. Now there were zamindars also, jagirdars also in his team. So in the Mughal administrative structure, zamindars and jagirdar they played a vital role in managing the land and revenue collection. ये क्यों काम करते थे, लैंड का रेवेन्यू देखते थे और लैंड देखते थे, रेवेन्यू कलेक्शन देते थे। ये लोकल रेवेन्यू ऑफिसर्स थे जिन्होंने टैक्सेस को कंट्रोल कर रखा था सब पीजेंट से। तो दे हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग प्रॉपर कल्टिवेशन ऑफ लैंड। इनका काम क्या था, लैंड का प्रॉपर कल्टिवेशन हो, वेलबींग हो पीजेंट का, जगीरदार्स का, एंड दे वर ग्रांटेड रेवेन्यू, उनको कुछ जगीर्स मिले, एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम स्पेसिफिक टेरिटरीज। दे वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर रीजन। सो इनको बोला गया था कि आप लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखें। तो अकबर के टाइम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे थी, इकोनॉमी बहुत फ्लरिश की कैसे। अंडर अकबर्स रूल द मुगल एम्पायर एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। द एम्पायर्स वास्ट टेरिटरी फैसिलिटेटेड इंटरनल एंड ट्रेड एंड कॉमर्स व्हिच हेल्प्ड इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अकबर ने ही प्रमोटेड अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। तो यहाँ पे इस बात में कोई स्ट्रगल नहीं था। एम्पायर वाज एंगेज इन एक्टिव ट्रेड विद नेबरिंग रीजन्स एंड फॉरेन कंट्रीज, एक्सचेंजिंग गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, सिल्क एंड प्रेशियस मेटल्स। नाउ इसका जो सिस्टम था, मनसबदरी सिस्टम, वो जो था उसने अकबर ने जो इंट्रोड्यूस किया था, इसका बहुत इम्पैक्ट था इसकी इकोनॉमी में। जो सिस्टम था हिरार्किकल स्ट्रक्चर था, इंक्लूडिंग मिलिट्री रैंक्स to official based on their military skills and administrative responsibilities. In return for their services, officials were granted land assignment, जिसे जगीर्स भी कहते थे, from which they received revenue. This system ensured loyalty and nobility to the emperor, while also providing them with the source of income. तो लोगों को एक लॉयल टीम मिली थी और लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम भी मिल रहा था। ये जो स्टेबिलिटी थी, एफिशिएंसी थी, इसके वजह से जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत समय तक रही। इन दिस कंपैरेटिव एनालिसिस वी एक्सप्लोर, तो अगर हम बात करें दोनों राज्य में, हमने कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ा और अकबर के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि इनकी जो पॉलिसी थी अलग अलग थी, सोशल स्ट्रक्चर भी अलग था, लैंड होल्डिंग भी अलग था, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अलग थी। तो हम इस बार इसी को है ना, लेट्स रिवाइज। जो कृष्णदेवा विजयनगर एम्पायर था, उसका वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, वो जस्टिस को एम्फेसाइज करता था, वेलफेयर को एम्फेसाइज करता था। उसने कास्ट सिस्टम लाया था जिसमें जिससे के थ्रू और बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया सोसाइटी में। आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर बहुत फ्लरिश हुआ, एंड ही बेसिकली ना ही हेल्प इन द थ्राइविंग ऑफ इकोनॉमी, and he was basically dealing in agriculture, trade and handicrafts. They were port and trade centers for prosperity. On the other hand, if we talk about Akbar empire demonstrated a centralized administration system. ये centralized हो गया था, यहाँ पे organized था पर यहाँ पे centralized था। और ये religious tolerance, ये बहुत important है कि अकबर किस में believe करता था, religious tolerance में believe करता था। Various communities coexisted with the Mansabdari system, shaping governance, trade and commerce flourished, contributing the empire's flourishing economy. This chapter provides valuable insights into the historical legacies of those influential empires
offering a glimpse into India's dynamic tapestry. In conclusion, the comparative analysis of Krishnadevaraya and Akbar Empire revealed the profound impact on India's history. Krishnadeva Vijayanagara Empire represented period of cultural brilliance and benevolence rule, while Akbar rule exemplified religious tolerance and inclusive governments. Both empires thrived in different ways, with Krishnadeva focusing on art, literature, and trade, and Akbar emphasis on economic prosperity and religious harmony. This chapter serves as a stepping stone to a deeper exploration of India's rich historical heritage, urging us to appreciate the diversity and richness that have shaped our nation's narrative order over centuries. May the knowledge gained by this chapter inspire further curiosity and appreciation for the dynamic and vibrant history of India. So this was all about the chapter. We studied about these two rules. It felt as we are diving into the empires and studying every bit of it. Now let's do the assessment. What was the capital of Vijayanagar Empire? It was Hampi. Then who were the founders of Vijayanagar? It was Harihara and Bhukak. Then which ruler is known as the greatest of Vijayanagar Empire? Krishnadeva Raya. What was the unique feature of Krishnadeva Raya? In his court, the poets were Ashtha Diggats. Then next is, which city was the capital of Mughal Empire during Akbar? It was Agra. Who introduced the Mansabdari system? It was Akbar. What was the administrative system introduced by Akbar to govern the Mughal Empire? तो इनका administrative system जो था वो क्या था आपका? इनका administrative system was feudal system. Mansabdari से it was the Mansabdari system. Which religious policy did Akbar follow during this? इसने कौन सा किया था? Religious tolerance. Now the Vijayanagar Empire was established by two brothers, right? So they were established by two brothers, and their names were, it was established by Harihara and Bhuka, and it was established in 1336. Krishnadeva Raya, the greatest ruler of the Vijayanagar Empire, defeated the Bahmani Sultan and annexed a fertile area which was known as dash between the Krishna and Tungabhadra river. तो हम देखें इन्होंने एक कृष्णा देव राय जो था वो एक बहुत बड़ा रूलर था, और इसने जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत सारा काम किया, एंड देन ही वॉज एबल टू अनेक्स विच प्लेस? दिस इज रायचूर दुआब. तो इसने क्या कौन सी जगह अनेक्स की थी? रायचूर दुआब को अनेक्स किया था, एंड बिकॉज ऑफ विच ही वाज एबल टू हैव अ कंप्लीट होल्ड ऑफ साउथ इंडिया. द थ्री मेन डायनेस्टी जो थी वो आपकी तीन मेन डायनेस्टी जो हमने पढ़ी हैं इसके टाइम में, द थ्री मेन डायनेस्टी दैट वर देयर in his time, it was the Sangam dynasty, the Saluva dynasty, and the Tuluva dynasty. Now let's come to the next question. The next question is, you have to learn the spellings also. The ruins of Hampi were brought into light in 1800 by an engineer and an antiquarian named Colonel Colin Mackenzie. The city of Hampi fell into decline after the Battle of Tolista in 1565. But trade continued, and albeit with the loss of importance. Akbar, the great Mughal ruler, introduced a central administrative system and divided the empires into subhas, each ruled by a governor known as Subedar. The Mansabdari system introduced by Akbar assigned military ranks or mansabs to official based on their military skills and administrative responsibility. Let's come to true false. Krishnadeva Raya and Akbar both ruled during the same time period? No. The Vijayanagar Empire was founded in 14th century by Harihara and Bukka. That's true. Next is, Hampi in Karnataka is the world's largest World Heritage Site. That is again true. Then Krishnadeva Raya encouraged trade and commerce and established links with Portuguese, English, and Dutch. Yes, that's true. Then caste system played a significant role in shaping society during Krishnadeva Raya rule. That's true. Akbar introduced a Mansabdari system, a military cum civilian administrative structure. That's true. Deen-e-Ilahi introduced by Akbar was a new religion with priest. नहीं, ये new religion नहीं था, कोई religion नहीं था, ये moral of conduct था. Akbar abolished the practice of forcibly converting prisoners of war into Islam. True. Now, what were the key achievements of Krishnadeva Raya during his rule? Krishnadeva Raya had a great time during his kingdom, and he believed in the policy of expansion and consolidation, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था.
He was the one who had acquired complete South India, and during his during when Krishna Deva Raya was leading this era had a great time because they developed ports and centers, the economy flourished. There was a great time when people were having proper caste system. After the caste system, it was the patronage of the arts and literature, and there was a flourishing in the architectural grandeur. Let's come to the next question. The next question is, how did the Vijayanagar Empire contribute to trade and commerce? Vijayanagar Empire flourished a lot in trade and commerce. Vijayanagar Empire was basically built on river Tungabhadra, which was very important for all the trade and commerce. Now, in the Vijayanagar Empire, it had a major strategic location along the Arabian Sea and the Bay of Bengal, and there was an establishing trade and commerce with foreign countries like Persia, Arabia, China, and Southeast Asia. Not only this, the merchant from far and wide used to come there. So there was prosperous ports of Goa, Mangalore, which facilitated maritime trade and enhanced the economic growth of that time. Next question is, this is done. How did Akbar establish a centralized administration system, and what were the key features? Akbar had a great time during his presence, and he made the centralized system, right? This system was a centralized system with proper rules. So he had a centralized administrative system. He had divided the entire province into subas. Each suba was governed by a subedar, and centrally he used to maintain unity and stability. He also made the Rajputs very strong supporters of Mughals, and he really wanted to gain their loyalty in many ways. He used to crush the ones who used to be very oppressive, but then most of them were treated very honorably. He actually, he knew that he had to be in good terms with Hindus, which were the main people living there. So he allowed most Rajput kings to continue ruling without interfering into their working, and he gave a lot of high posts to Rajput rulers also, right? Then let's come to the next question. The next question is, what were Akbar's efforts towards religious tolerance, and how did they impact the Mughal Empire? We will study in the further chapter that Akbar was we have studied that he was very religiously tolerant. He considered God as one. He even adopted the policy of the Nilai, which was a moral conduct in which he was very tolerant to all the religions. He used to give grants to for temple building. He used to literally have a place a hall where he used to conduct the debates of people of interfaith religion, and that impacted his Mughal Empire. Then what was the Todarmal Bandobast and its significance in Akbar's land revenue system? Akbar had introduced Todarmal Bandobast, in which the entire area was structurized. It was calculated, the entire land was calculated, and 1/3 of the total yield was taken as the revenue. What role does Zamindars and Jagirdars play in the Mughal administrative structure? Zamindars and Jagirdars played an important role in collecting the tax, in taking care of the welfare of the people, in taking care of the land, and in also ensuring proper land and revenue system. Then, how was the Vijayanagar Empire established, and who were the founders? Vijayanagar Empire was established by two brothers, and they were the ones who actually made to the flourishing of this empire, which ruled for over a lot of years. Now, when we talk of Vijayanagar, this was a place which was started. This was a place which was actually found by Harihara and Bukka in 1336. Although at that point of time they were feudatories of Varangal, and then when Ghiyasuddin Tughlaq had invaded, so they shifted to Kampili. But then when Ghiyasuddin moved to Kampali and conquered Kampali, they were taken as prisoners, and then they were sent to South India. But after some time, these two brothers rebelled against Tughlaq, and then they built Vijayanagar and made Hampi as its capital. Now, let's come to the next question. The next question is, describe the geographical extent of Vijayanagar Empire during its heyday. Vijayanagar jo empire tha, it had a great extent. It extended from north to south. So when it had its heyday, it stretched from the river Krishna in the north to extreme south of the peninsula. So it extended from north to south.
Now, what role did Harihara and Buka play in the foundation of Vijayanagar? Harihara and Buka had a great role to play in the foundation of Vijayanagar. They were the ones who had a lot of problems and they had to face a lot of challenges when Tughlaq attacked them. But they converted these opportunities into, they converted these problems into opportunities, and then they finally succeeded in having a rule over Vijayanagar. What were the notable achievements of Krishna Deva Raya during the reign? Deva Raya was a ruler who was really patronized during that time, because he was the one who patronized a lot of welfare for the people. He considered the welfare of people, although he created the caste system, but that was a division of labor work given as per the roles assigned. He was the one who expanded a lot of trade, and his economy flourished during that time. He also did a lot to establish the architecture over that time. How did Krishna Deva Raya contribute to the economic development of Vijayanagar Empire? Krishna Deva Raya was really important in enhancing the economy of the country, because he believed in expansion and consolidation. Because of him, he prayed, because of the strategic location of Vijayanagar, he was able to develop and establish a flourishing trade with countries like Persia, Arabia, China, and Southeast Asia. Then he was the one who actually, he basically, at that point of time, there was a exchange of goods like spices, textile, and precious gem. Handicraft industry also flourished during that time. It produced fine textile, metalwork, pottery, which contributed to economic prosperity during Vijayanagar Empire. Then there's next question. How did Krishna Deva Raya contribute to economic development of the Vijayanagar Empire? This we have done. Discuss the significance of the Ashtadiggaj in Krishna Deva Raya's court. If we talk of Krishna Deva Raya had a court in which he had 8 poets. They were collectively known as Ashtadiggaj. These 8 poets were collectively known as Ashtadiggaj, जिसका मतलब होता है 8 elephants. They were Alasani Pedana, Nandi Thimana, Madhyagari Malana, Dhur Jati, Ayal Raju, Rama Bhadru, Bengali Surana. Then we had Ramar Raju Bhushan Nandu and Tenali Raman. So these were the 8 poets who encouraged a lot of literature in his kingdom. Right. So this is about the entire chapter. We have done all the question answers, and this is about the entire chapter and the question answers. I know it was a lengthy chapter, but I hope you enjoyed learning. Happy learning.